ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنے خالہ کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ اچانک ان کی آنکھ کھلی اور وہ مسکرا رہے تھے۔ ان کی خالہ ام حرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اسی وقت ایک ویژن دکھایا گیا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ سمندروں پر جنگ کے لیے ایسے جا رہے ہیں جیسے بادشاہ اپنے تخت پر ہوتا ہے۔ یہ سنتے ہی ان کی خالہ ام حرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ دعا کریں کہ میں بھی اس فوج میں شامل ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ آپ اس فوج میں ضرور ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمان حضرت عمر کے دور میں دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن چکے تھے اور مسلمانوں کی فوج ایسٹ ویسٹ ہر طرف پھیل چکی تھی۔ لیکن اب بھی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کمزوری تھی، سمندر۔ اور رومن امپائر بار بار اسی سمندر کے راستے مسلمانوں پر حملے کیا کرتی تھی، کیونکہ اب تک مسلمانوں کے پاس اپنی کوئی بھی نیوی نہیں تھی۔ اسی لیے حضرت عمر کے زمانے میں ان کے ایک گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف ایک لیٹر بھیجا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ مسلمان بھی اپنی پاورفل نیوی بنائیں۔ لیکن حضرت عمر نے ایسا کرنے سے بالکل انکار کر دیا، کیونکہ اس سمندر میں پچھلے 700 سال سے رومن امپائر کا راج تھا اور ان کے پاس دنیا کی سب سے بڑی نیوی تھی، 1000 جنگی کشتی، جس کی وجہ سے اس پورے سمندر کو رومن سمندر کہا جاتا تھا، جس کے مقابلے میں مسلمان ڈیزرٹ میں رہنے والے لوگ تھے اور ان کے پاس سمندروں میں جنگ کرنے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی حضرت عمر کے بعد مسلمانوں کے نئے خلیفہ حضرت عثمان بنے، انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ، جو حضرت عمر کے دور میں ایک چھوٹے سے علاقے کے گورنر تھے، حضرت عثمان نے انہیں پورے شام کا گورنر بنا دیا۔ اور ایک بار پھر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے کزن حضرت عثمان کی طرف وہی سیم لیٹر بھیجا، لیکن حضرت عثمان نے انہیں جواب دیا کہ جب حضرت عمر تمہیں نیوی بنانے سے روک رہے تھے تب میں ان کے پاس ہی کھڑا تھا، مطلب اب بھی نیوی بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن حضرت معاویہ بار بار خلیفہ عثمان سے نیوی بنانے کی اجازت مانگتے رہے، یہاں تک کہ ایک لیٹر میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ رومن امپائر کا سائپرس ہمارے اتنے قریب ہے کہ وہاں کے کتوں کے بھونکنے کی آواز بھی ہمیں یہاں سنائی دیتی ہے۔ بائی دی وے، یہ صرف حضرت معاویہ نے ایک مثال دی تھی، اصل میں وہاں سے کتوں کی آواز نہیں پہنچ سکتی۔ آخر حضرت معاویہ کے بار بار کہنے پر حضرت عثمان نے انہیں سائپرس پر حملہ کرنے کی اجازت دے دی، لیکن حضرت عثمان نے کہا کہ تم ایک ہی شرط پر نیوی بنا سکتے ہو کہ اگر واقعی تم کشتیوں پر جنگ کرنا اتنا ہی آسان سمجھتے ہو تو پھر اس جنگ پر تم سارے جنرلز اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لے کر جاؤ گے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلیفہ عثمان کی یہ شرط قبول کی اور اسلام کی پہلی نیوی بنانے کا حکم دیا۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ مسلمانوں میں کسی کو بھی بڑے بڑے جنگی جہاز بنانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، تو پھر مسلمانوں نے آخر یہ نیوی بنائی کیسے؟ اصل میں اس سے بہت سال پہلے جب مسلمانوں نے یہ سارے علاقے فتح نہیں کیے تھے اور یہاں رومن امپائر کی حکومت تھی، رومن امپائر نے اپنی نیوی کے لیے فلسطین اور ایجپٹ میں جنگی جہاز بنانے کے 2 بڑی بڑی فیکٹریز بنائی تھی، جہاں رومن امپائر کی نیوی کے لیے بڑے بڑے جہاز بنائے جاتے تھے جن کا نام تھا ڈرومون۔ اور یہ اتنی بڑی کشتیاں تھیں کہ ان میں ایک ہی ٹائم پہ 300 وارئرز سوار ہو سکتے تھے۔ لیکن اب جب مسلمانوں نے رومن امپائر سے یہ سارے علاقے فتح کیے، کشتیاں بنانے کی یہ 2 فیکٹریز بھی مسلمانوں کے ہاتھ آئی، جو پہلے تو مسلمانوں کے کسی کام کے نہیں تھے، لیکن اب خلیفہ عثمان کے آرڈرز پر ان فیکٹریز کو دوبارہ کھولا گیا اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے کرسچن انجینئرز کو اپنے پاس بلایا کہ اب رومن امپائر کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے سمندری جہاز بنا، اور اس طرح اسلام کی پہلی نیوی تیار ہونے لگی۔ جیسے ہی کچھ کشتیاں تیار ہوئی تو خلیفہ عثمان کے آرڈرز کے مطابق حضرت معاویہ اور ان کے جنرلز اپنی بیویوں کو ساتھ لے کر سائپرس فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔
अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह थी, हजरत मुआविया के जनरल्स में से एक की बीवी का नाम था उम्मे हराम रज़ियल्लाहु अन्हा। ये वही उम्मे हराम थी जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि या रसूलल्लाह, आप दुआ करें कि मैं भी उस फौज में शामिल हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिया कि आप उस फौज में जरूर होंगे। जैसे ही मुसलमानों की फौज साइप्रस पहुंची, साइप्रस के सारे लोगों ने मुसलमानों के सामने सरेंडर कर दिया। ये इस्लाम की नेवी की सबसे पहली फतह थी। लेकिन जैसे ही मुसलमान यहाँ पहुंचे, उम्मे हराम अपने घोड़े से गिरकर शहीद हो गई और यही साइप्रस में आज तक उनकी कब्र है, जिन्हें तुर्की में हाला सुल्तान के नाम से याद किया जाता है। इसके बाद अगले 4 साल तक साइप्रस मुसलमानों के कंट्रोल में रहा। लेकिन 4 साल बाद जब मुसलमानों की नेवी में कश्तियां और भी बढ़ गई, हजरत मुआविया इन सारे जहाजों को लेकर और भी आगे बढ़े और सीधा रोमन एम्पायर के कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल की तरफ बढ़ने लगे। यहां तक कि कहा जाता है कि मुसलमान रोमन कैपिटल के इतने करीब पहुंच गए कि मुसलमान अपनी आंखों से रोमन बादशाह के किले को देख रहे थे और रोमन बादशाह कॉन्स्टेंस मुसलमानों की फौज को देख रहा था। मुसलमान रोमन कैपिटल पर हमला करने के लिए बिल्कुल रेडी थे, क्योंकि उन्हें पता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जो भी मुसलमान फौज सबसे पहले रोमन बादशाह के शहर पर हमला करेगी, उन्हें जन्नत मिलेगी। जैसे ही हजरत मुआविया कैपिटल की तरफ बढ़ने लगे, उसी वक्त उन्हें खबर मिली कि पीछे साइप्रस में मुसलमानों के खिलाफ बगावत हो चुकी है। और ये सुनते ही हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु रोमन कैपिटल पर हमला किए बगैर ही अपनी पूरी फौज के साथ वापस साइप्रस की तरफ फुल स्पीड रवाना हुए और एक बार फिर साइप्रस को दोबारा फतह किया, लेकिन इस बार तलवारों से। मुसलमानों की फौज को अपनी कैपिटल के इतने करीब देखकर अब रोमन बादशाह और बर्दाश्त नहीं कर सकता था और उसने फैसला किया कि अब मैं इन मुसलमानों को रोमन नेवी की असल ताकत दिखाऊंगा, ताकि इन्हें पता चले कि समंदर में असल जंग होती क्या है। जिसके बाद रोमन बादशाह कॉन्स्टेंस खुद 500 जंगी जहाज ड्रोमोन्स लेकर खिलाफत पर हमले के लिए रवाना हुआ। ये कश्तियां दिन रात सफर करके तेजी से मुसलमानों की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ये 500 कश्तियां साइप्रस के करीब पहुंची, तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि सामने मुसलमानों की 200 जंगी जहाज पहले ही उनका इंतजार कर रही थी, क्योंकि रोमन बादशाह के इस हमले की खबर खलीफा उस्मान तक पहले ही पहुंच चुकी थी और उन्होंने फौरन शाम के गवर्नर मुआविया और इजिप्ट के गवर्नर अब्दुल्ला की तरफ दोनों की तरफ हुक्म भेजा कि अपनी पूरी नेवी को लेकर रोमन बादशाह को रोकने के लिए रवाना हो। और अब ये दोनों जनरल्स मिलकर अपनी 200 कश्तियों के साथ रोमन नेवी के सामने खड़े थे। इजिप्ट के गवर्नर अब्दुल्ला बिन साद की कश्तियां मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से ज्यादा थी, इसीलिए इस जंग के बड़े जनरल अब्दुल्ला बिन साद थे। जैसे ही मुसलमानों और रोमन्स की नेवी एक दूसरे के आमने सामने हुई, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला था। समंदर की हवाएं मुसलमानों की कश्तियों के अगेंस्ट चल रही थी और मुसलमानों की कश्तियों को पीछे धकेल रही थी। मतलब अगर जंग शुरू हो जाती, रोमन नेवी मुसलमानों की कश्तियों को तेजी से क्रश कर सकती थी और इन हवाओं की वजह से मुसलमान कुछ नहीं कर सकते थे। ये देखकर मुसलमानों के जनरल ने हुक्म दिया कि सारे कश्तियों के एंकर्स गिरा दिए जाएं और कश्तियों को अपनी अपनी जगह पर रोक दिया जाए। जिसके बाद मुसलमानों के जनरल ने रोमन बादशाह की तरफ एक मैसेज भेजा कि मैं जो कहता हूँ, समंदरों पर जंग करने से अच्छा है हम किसी अच्छी सी बड़ी जमीन पर जंग करें। ये बात सुनकर रोमन बादशाह मुसलमानों पर हंसने लगा और उसने अपनी पूरी फौज से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, जिसमें पूरी रोमन फौज नारे लगाने लगी, क्योंकि उन्हें पता था कि जमीन पर तो मुसलमानों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, लेकिन समंदरों पर सिर्फ रोमन्स का राज है। ये देखकर रोमन बादशाह ने मुसलमानों को जवाब दिया, जंग समंदर पर होगी, समंदर पार। अब जब रोमन्स मुसलमानों की फौज पर हंस रहे थे, ये देखकर मुसलमानों के जनरल ने हुक्म दिया कि सारे एंकर्स
उठा दिए जाए। जैसे ही मुसलमानों ने एंकर्स उठा दिए, अचानक आउट ऑफ नोवेयर समंदर में हवाओं का रुख बदल गया और मुसलमान नारे लगाने लगे। इसी के साथ मुसलमानों की कश्तियों के सारे सेल्स खोल दिए और मुसलमानों के 200 जंगी जहाज फुल स्पीड रोमन्स की तरफ बढ़ने लगे। इस तरह अचानक हवाओं का रुख बदलते देखकर रोमन एम्पायर का बादशाह घबराने लगा और उसे याद आया कि इससे कुछ ही दिन पहले उसने एक ख्वाब देखा था। और जब उसने एक ख्वाब अपने नजूमियों को बताया, उन्होंने अपने बादशाह से कहा, माय किंग, काश आप उस रात सोते ही ना और ये ख्वाब ना देखते, क्योंकि इस ख्वाब का सिर्फ एक ही मतलब है, शिकस्त, डिफीट। मुसलमानों की कश्तियां तेजी से रोमन्स की तरफ बढ़ रही थी और जैसे ये कश्तियां बिल्कुल एक दूसरे के करीब पहुंची तो ऑफ कोर्स क्या होना था? नहीं, ऐसा नहीं था। उस जमाने में ये वाली तोप जो गन पाउडर से चलती है इजाद ही नहीं हुई थी और लोग कश्तियों में भी तीरों और तलवारों से लड़ते थे। तो जैसे ही मुसलमान रोमन्स के करीब पहुंचे, इससे पहले ही मुसलमानों ने अपनी सारी कश्तियों को एक दूसरे के साथ मजबूती से बांध दिया था, जिसका मुसलमानों को यह फायदा हुआ कि मुसलमानों की सारी कश्तियां बिल्कुल स्टेबल थी और मुसलमानों की तीरें सीधा अपने निशाने पर लगती थी। और रोमन्स की कश्तियां हिलने की वजह से उनका हर टारगेट मिस हो रहा था। ये इतनी खतरनाक जंग थी कि इसे आज तक समंदरों की जंगे यरमूक कहा जाता है, क्योंकि ये उस जमाने की दुनिया की सबसे बड़ी समंदरी जंग थी। जैसे ये दो नेवीज आपस में टकराई, मुसलमानों ने अपनी कश्तियों को रोमन्स की कश्तियों से भी बांध दिया, जिससे अब समंदर के बीच में ही एक बहुत बड़ा जंग का मैदान बन गया। अब जब यहाँ एक बहुत ही खतरनाक जंग चल रही थी, अचानक आसमान में बादल गरजने लगे और समंदर में एक बहुत बड़ी तूफान शुरू हुई। लेकिन ये जंग इस सख्त तूफान में जारी रही। अब तक तो मुसलमान ये जंग जीत रहे थे, लेकिन अचानक रोमन्स ने अपनी पूरी ताकत के साथ सीधा मुसलमानों के जनरल अब्दुल्ला बिन साद पर हमला कर दिया और उनकी कश्ती को अपनी कश्ती से बांधकर जंग से दूर ले जाने लगे, ताकि अपने जनरल को मरता देखकर मुसलमानों का मोराल टूट सके। यहाँ तक कि मुसलमानों का जनरल जख्मी भी हो गया। लेकिन आखिर एक मुसलमान ने अपनी जान पर खेलकर इन दोनों कश्तियों के दरमियान रस्सी को काट दी और मुसलमानों के जनरल की जान बचा ली, लेकिन खुद समंदर में गिरकर शहीद हो गए। ये देखकर मुसलमानों का जज्बा और भी बढ़ा और उन्होंने इतना जबरदस्त हमला किया कि रोमन्स की 500 कश्तियां एक एक करके गिरने लगी और रोमन बादशाह को भी समझ आ गए कि अब कुछ नहीं हो सकता। कहा जाता है उसने अपने बादशाह का ताज उतारकर एक आम सोल्जर के कपड़े पहने और किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। और इस तरह मुसलमान खलीफा उस्मान के दौर में समंदरों की यरमूक जीत गए। अब रोमन एम्पायर की कमर बिल्कुल टूट चुकी थी और उनका बादशाह जख्मी हो चुका था, लेकिन फिर भी हजरत उस्मान को अच्छी तरह पता था कि रोमन कैपिटल को फतह करना इम्पॉसिबल है। जिसके बाद खलीफा उस्मान एक नया बहुत बड़ा प्लान बनाने लगे और उन्होंने अपने दूर के गवर्नर की तरफ एक लेटर और उसके साथ एक नक्शा भेजा, जिसमें हजरत उस्मान ने इस्लाम के फ्यूचर का प्लान बताया और कहा सबसे पहले मुसलमान स्पेन को फतह करेंगे, उसके बाद फ्रांस, फिर इटली, फिर ग्रीस और इस तरह पूरे यूरोप को फतह करने के बाद मुसलमान आखिर रोमन कैपिटल पर हमला करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि आज तक खलीफा उस्मान का ये प्लान पूरा नहीं हो सका, क्योंकि जैसे ही हजरत उस्मान ने ये प्लान बनाया, खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को मुसलमानों के ही एक ग्रुप ने शहीद कर दिया। लेकिन शहीद होने से पहले खलीफा उस्मान ने दुनिया के समंदरों पर राज करने वाले 700 साल पुरानी रोमन नेवी को बिल्कुल खत्म कर दिया था। सब्सक्राइब